Hello everyone, once again welcome back to our channel for this lecture series of research methodology. First of all, thank you so much for your comments, for your answer, for your sincereness which you are giving to me, because this is very important. If I'll not get your input, if I'll not get your response, then it is very difficult to improve myself in the next lecture, because I have to cover all the lectures. And please don't worry, I'll not stop this series, but I need your response regularly. So today we'll start with the research design. This is very important because the research design is the base. So before proceeding, in the last lecture of research problem, I have raised few MCQs, which is very important, and the best part is that you all have answers very well. So now the time to just give the answer as quick as possible. This was the question 1, and the answer is diagnostic. What they have asked is concerned with the discovery and testing of certain variables, because these are testing certain variables. So जहाँ पे टेस्टिंग हो रही है रिगार्डिंग सम वेरिएबल्स, सो इट कैन नॉट बी एक्सप्लोरेटरी और डिस्क्रिप्टिव with respect to their association or disassociation. So that this is called diagnostic, because the fourth option they have included descriptive and diagnostic. तो ये कभी सही नहीं हो सकता. तो right answer is diagnostic, C. Next question was, the main objective of this study is to acquire knowledge. So this exploratory will not acquire just a knowledge. These are this exploratory. Diagnostic is not descriptive, and diagnostic is not. The answer is descriptive studies will help you to acquire knowledge, क्योंकि उसके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं दैट इज ओनली टू जस्ट गेट द नॉलेज. डायग्नोस्टिक जो होता है वो किसी चीज़ को डिस्कवर करता है, चीज़ों को कोरिलेट करता है, बट दैट इज ऑल्सो फॉर द नॉलेज. बट द राइट आंसर एज पर द ऑप्शन इज डिस्क्रिप्टिव. The next is research is, I guess ये सबको पता होगा, searching again and again, finding solutions to any problem, working in a scientific way. हम लोगों ने डिस्कस किया था, working in a scientific way to search for truth of any problem is research. Now, in order to pursue the research with the following is priorly required. तो क्या required होता है research करने से सबसे पहले? Research design, formulating a problem, डिसाइडिंग अबाउट द डेटा एनालिसिस, फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च हाइपोथेसिस. देखो हाइपोथेसिस कभी भी पहले नहीं बनेगा. डेटा एनालिसिस सबसे लास्ट में होती है, द सेकेंड लास्ट स्टेप, जब डेटा कलेक्ट हो जाता है. अब दो ऑप्शंस में डाउट, डेवलपिंग अ रिसर्च डिज़ाइन. तो कुछ लोगों ने रिसर्च डिज़ाइन आंसर दिया है, बट दैट इज ऑल्सो द रॉन्ग आंसर. सबसे पहले दिमाग में रिसर्च क्वेश्चन आएगा, then only we can proceed for the objectives and developing a research design. So the very first priority is the research question. Now the first is how to judge the depth of any research. कोई भी रिसर्च अगर हो रही है तो अगर आपको जज करना है, लाइक मेरे लैब में अगर 4 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, सो अगर मुझे उसकी डेप्थ को जज करना है, सो कैसे मैं करूँगा? क्या उसके टाइटल से? इट्स वेरी डिफिकल्ट. टाइटल के अंदर ऑब्जेक्टिव्स नहीं होते. टाइटल इज जस्ट द short information of what you are doing. The research duration, is that possible? No. हो सकता है आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स ऐसे हों जो कंप्लीट ही नहीं हो रहे हो, और आप बोलो कि ये स्टडी इज़ बेटर देन दिस स्टडी क्योंकि ये तो 2 साल से चल रही है, ये 6 महीने में ख़त्म हो गई. नो, दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग. बाय नोइंग द रिसर्च ऑब्जेक्टिव यू कैन नो द डेप्थ. एक्सपेंडिचर से नहीं पता चलता. हो सकता है छोटे प्रोजेक्ट्स में भी कुछ लोग ज़्यादा खर्च कर देते हैं. सो दीज आर द क्वेश्चंस, एंड नाउ वील स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक, दैट इज रिसर्च डिज़ाइन. सो एज द सो बिफोर स्टार्टिंग मैं अभी आपको क्वेश्चंस पोस्ट कर रहा हूँ, जल्दी से आप उसको देखना, ध्यान से रुक के पढ़ना, बिकॉज दीज आर द क्वेश्चन जो इसका आपको आंसर देने हैं. नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस. आइडेंटिफाई कॉज ऑफ अ प्रॉब्लम एंड पॉसिबल सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम इज. Identifying cause of a problem and possible solution to a problem is, these are the 4 options. Second is, second step in problem formulation is. Second step in problem formulation is. These are your options. Statement of the problem, understanding the nature of the problem, survey and discussion. The third is, wrong questionnaire is an example of. अगर आप गलत क्वेश्चनर बना लोगे, so is an example of what? Primary data, secondary data, A or B, and none.
Now the next is the existing company information is an example of which type of data, primary, secondary, both A and B, and none of the above. Now the fifth question is, if your colleague is confused about using the marketing research process, as he knows that something is wrong, but he is not sure of specific cause to investigation. He seems to having the problem with what, which is often the hardest step to take. ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया है. Now you have to tell me these answers. Q1 just write in the comment box Q1A, Q2B, Q3C, Q4-5 and this all. Fine. Now move on to the next that is the main introduction of the preparing the research design. This is very important. Basically before starting to the research design मैं एक just basic सा concept आपके दिमाग में डालता हूँ, like research design. Don't go in the research field. Just forget about everything. Research design. Just think like if I have to build a house. If I have to build a house, I have the space. What should I do first? First I'll hire an architect. Agreed or not? मेरे पास ज़मीन है, लैंड है, सो फर्स्ट आई कॉल एन आर्किटेक्ट टू डिज़ाइन द स्ट्रक्चर कि हम कैसा घर बनाएंगे, कैसी बिल्डिंग बनेगी. सो दैट इज़ द रिसर्च डिज़ाइन. यहाँ कितना स्पेस हमको छोड़ना है, हाउ मच कारपेट एरिया मस्ट बी देयर, हाउ मच लॉन एरिया विल बी देयर एंड हाउ मच स्पेस द हॉल विल बी देयर, सो एंड सो ऑन. कहाँ स्पेस रहेगी, कहाँ विंडोज़ रहेंगी, कहाँ डोर्स रहेंगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. So the research design is very important because on that architect you have to plan each and everything from day zero. Because if your architect shows कि आपको 3 फ्लोर बनाने हैं, then accordingly you have to prepare, you have to buy your material. Your material cost will be decided on the basis of the research design. भाई उन्होंने बोला कि 3 फ्लोर बनेंगे सर, इसमें 3 नहीं बनेंगे तो दैट इज ऑल वेस्ट. सो डिज़ाइन अकॉर्डिंगली यू हैव टू कॉल द लेबर, अकॉर्डिंगली यू हैव टू कॉल द मटीरियल्स, अकॉर्डिंगली यू हैव टू डिसाइड द टाइम, कितना टाइम लगेगा इसके अंदर. सो किसने डिसाइड किया? रिसर्च डिज़ाइन ने. कितने गेट्स, कितने विंडोज़, कितने इक्विपमेंट्स लगने हैं, दैट इज़ ऑल डिसाइडेड बाय द रिसर्च डिज़ाइन. नाउ इट इज़ नाउ क्लियर. अब मैं जो भी बोलूँगा आई एम डैम श्योर कि दैट everything will goes into your mind and you have to connect all these things with your research proposal. Whatever you are doing in any field, sociology, mathematics, Hindi, Sanskrit, art, music, किसी में भी हो, you have to correlate this with your topic. Now the research design is a conceptual structure within which research would be conducted. As I said, the function of the research design is to provide for the collection of relevant information with smallest possible input in terms of efforts, time and money. This is very important because only the design will decide कि कितना time लगना है, कितना पैसा लगना है और कितने efforts लगने हैं. For example, I design a project. 3 साल का प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो अकॉर्डिंगली आई हैव टू कॉल द मैन पावर, अकॉर्डिंगली आई हैव टू बाय द केमिकल्स, अकॉर्डिंगली आई हैव टू बाय द रिएजेंट्स एंड द प्रोसीजर कि कौन कर पाएगा, कौन टेक्निकल स्टाफ है, कितना एक्सपर्टीज स्टाफ है. सो डिज़ाइन विल डिसाइड. अगर डिज़ाइन सिंपल है, एक्सपेरिमेंट कोई भी कर सकता है, देन वाई आई शुड हायर द साइंटिस्ट, आई हायर अ टेक्नीशियन, आई हायर अ रिसर्च असिस्टेंट, वो अपना काम कर लेगा. सो दैट इज़ अ डिज़ाइन. Now, the research is the specification of methods and procedure for acquiring the information needed, overall operation pattern, the framework, the project that stipulate what information is to be collected from the source. उस डिज़ाइन के अंदर, आपकी रिसर्च डिज़ाइन के अंदर जो भी आप करने वाले हो, दैट इंक्लूड्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च स्टडी, दैट इंक्लूड्स द मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन टू बी अडॉप्टेड, हाउ which method you are going to adopt for the data collection, the source of information, that is the sample design. अगर ये क्लिनिकल स्टडी है, देन व्हाट विल बी द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, व्हाट आर द सैम्पल्स, हाउ you will collect the information from the source, the tools for the data collection, which tool you are using, just by questionnaire, interview or something else. Now the data analysis, qualitative है, quantitative है, how the data is analyzed with various tools like ANOVA, t-test, with some softwares, each and everything must be there in your design. सो आई गेस रिसर्च डिज़ाइन बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी, बट कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जो अगली स्लाइड्स में हैं, अदरवाइज आई कैन जस्ट क्लोज इट. बट द थिंग्स इज दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि रिसर्च डिज़ाइन के अंदर और क्या क्या होना चाहिए.
Now, a good research design. This is all the simple definition. It can be provided in my the material which I can provide in a PDF form. So the research design, as it guides the researcher to identify the correct method of data collection. This is very important. अगर आपकी डिज़ाइन में गलत methodology हो गई, like with this path you have to go and to collect the data, analyze the data, और वो गलत है, then it is always time, efforts and money. Got it? So it is characterized, it is flexible, effectiveness and suitability. That is very important. आपकी जो डिज़ाइन है that must be very flexible, इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, सुटेबिलिटी होनी चाहिए कि कोई भी उसको कर ले. इज द वन दैट रिजल्ट इन मिनिमल एंड नो एरर. इतनी परफेक्ट होनी चाहिए रिजल्ट डिज़ाइन कि दैट वुड नॉट हैव एनी एरर. जितने भी एरर्स आए दिस विल बी नॉट सिग्निफिकेंट. ऐसा नहीं हो कि एग्जीक्यूट करने के बाद इट शुड बी फेल्ड. इट शुड बी मिनिमम एरर फ्री. फाइन. सो प्रिपेयरिंग अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड रिसर्च डिज़ाइन इज reliability, generalization and ethical. So what do you mean by reliability? What do you mean by generalization? Means it ensures that the research questions are framed judicially to make it reliable and provide similar outcomes. Means if I will design a protocol, I'll execute the experiments, I'll get the result, I'll publish the results. Fine, very good. But if you just browse the result on Google or PubMed or something else and you'll get my paper and आपको वो research design बहुत पसंद आ गई, like this is the way through which you want to proceed. Now if you want to proceed with a similar pattern and you are not getting the result, then this design is not good. It must be reliable. Now the second is the generalization. The information, कई बार ऐसा होता होगा, आप पेपर्स कलेक्ट करते होगे, वहाँ से सपोज मॉलिकुलर की बात करूं तो प्राइमर्स लेके आते हो, कुछ मेथोडोलॉजी चूज करते हो एंड वो आप फेल कर जाते हो. दैट इज वाई एवरी टाइम इट इज वेरी मच रिकमेंडेड ओनली फॉलो द हाई इम्पैक्ट एंड इंडेक्स जर्नल आर्टिकल्स. बिकॉज होता क्या है, देयर आर मैनी प्रेडेटर्स जर्नल्स पैदा हो रखी हैं. यू कैन नॉट जज वो कैसे भी पेपर्स को पब्लिश कर दे रहे हैं. कोई भी रिसर्च डिज़ाइन को पब्लिश कर देते हैं. दे विल नॉट सी द ऑथेंटिसिटी, कुछ भी नहीं देखते. दे डोंट हैव द रिव्यू पैनल, दे डोंट हैव द एडिटोरियल पैनल. दे जस्ट एक्सेप्ट द आर्टिकल्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी. सो यू हैव टू चूज, द रिसर्चर हैव टू चूज विच रिसर्च डिज़ाइन इज परफेक्ट. मेरे जितने भी मेंबर्स हैं will come sit and decide कि no, this is not the topic for you, these are not the perfect objective for you and these are not the perfect methodology for you because these papers are not good. Now the second is the generalization. This information collected that gives the sample must be utilized for providing a journal application. Journal application के लिए वो जाना चाहिए, उसके applications बहुत ही generalized हो, clear हो. ऐसी डिज़ाइन होना चाहिए. Now ethical means it must be acceptable. ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल अनएथिकल तरीके से आप उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करें. फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई एनिमल एक्टिविटी है और मुझे कुछ ऐसी ड्रग है मेरे पास जो पेन किलर है, मतलब एनाल्जेसिक है, सॉरी पेन किलर है, एनाल्जेसिक है, एंड आई वांट टू टेस्ट ऑन द एनिमल. अब कोई ऐसा मॉडल चूज़ करे जिसमें आप एनिमल को टॉर्चर करो, दैट इज़ कम्प्लीटली अनएथिकल. एनिमल का एनाल्जेसिक एक्टिविटी करने के मॉडल्स अप्रूव्ड हैं. यू कैन नॉट गिव करंट और उसको आग लगा दो या कुछ कर दो. सो दैट मस्ट बी द प्रोसीजर मस्ट बी एक्सेप्टेबल एंड फ्री ऑफ प्रैक्टिस. ऐसे प्रोसीजर होने चाहिए जिसमें एरर नहीं आए और इथिकल हो. नाउ द टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन. दिस इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम टेलिंग यू, रिसर्च डिज़ाइन का नीड क्या है आपको समझ में आ गया कि आपकी इफिकेसी बढ़ाता है, रिलायबिलिटी बढ़ाता है, टाइम वेस्ट होने से आपने उसमें बचाया. जो भी आपकी पुरानी रिसर्च डिज़ाइन थी उसने आपका टाइम वेस्ट करने से बचाया. जो आपकी हाइपोथेसिस थी उसको सही प्रूफ किया. परफेक्ट रिसर्च मटेरियल को कलेक्ट करने में हेल्प की. एंड सबसे अच्छी बात कि आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हो इफ़ यू हैव अ गुड रिसर्च डिज़ाइन. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट इज द टाइप ऑफ रिसर्च डिज़ाइन. सी टाइप ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, अगर बेसिकली इफ आई डिवाइड
So it must be divided into two types. See, these all things are for everyone. मैं हर लेक्चर में ये चीज़ बोलता हूँ, दिस इज़ फॉर ऑल. सोशियोलॉजी, संस्कृत, म्यूज़िक, आर्ट, मैथ, साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कोई भी हो, गॉट इट. सबके अंदर ये रिसर्च डिज़ाइन एंड रिसर्च प्रॉब्लम एप्लीकेबल है. नाउ द क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन, आपको अपनी रिसर्च डिज़ाइन डिसाइड करनी है. अगर प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन डिस्कस विद मी. नाउ द क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन, क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन जो होती हैं दैट इज़ यूज टू एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स. कोई आपके पास वेरिएबल्स हैं, नंबर्स हैं, कोई भी डिज़ाइन होगी अगर क्वांटिटेटिव है तो उसके अंदर वेरिएबल्स होंगे, नंबर्स होंगे, कुछ स्टैटिक्स होंगे, कुछ फाइंडिंग्स होंगी, कुछ ना कुछ होगा. दैट इज़ क्वांटिटेटिव. एंड क्वांटिटेटिव के जो कैटेगरीज हैं दैट इज डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशनल. अभी मैं एग्जांपल्स बताऊंगा, दैट इज विल बी वेरी क्लियर टू यू. एक्सपेरिमेंटल एंड क्वासी एक्सपेरिमेंटल. नाउ द वेरी फर्स्ट इज द डिस्क्रिप्टिव. एज द नेम सजेस्ट, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन विल एनालाइज बेस्ड ऑन द अवेलेबल डेटा. कोई हाइपोथेसिस नहीं होगी, डिस्क्रिप्टिव डिजाइन है ये. इसका अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल बताऊं तो लाइक अ डॉक्टर report an individual occurrence of a disease in a single patient. एक ही पेशेंट है और उसने केस स्टडी डिफाइन की और उसके अंदर डॉक्टर ने रिपोर्ट किया लाइक दिस इज़ द इंडिविजुअल अकरेंस ऑफ अ डिजीज इन अ सिंगल पेशेंट. सो डिस्क्रिप्टिव, उसने डिस्क्राइब किया, दैट्स ऑल. कोई रिसर्च नहीं की कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा तो नो, नथिंग. दैट इज़ अ सिंपल केस स्टडी. सो इट इज़ कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव research design. Now move on to the next, that is very important, correlational design research. ये I guess most of the cases में होता है. This one and the next one is the experimental. Correlational का example बताऊँ, so this is basically to study two variables and their association in any way. Two variables correlation in any way. Simple सा example देता हूँ, like जो एग्जाम्पल है इसका लाइक दो वेरिएबल हैं, सपोज डिजीज और मैरिज. आई गेस यू ऑल आर शॉक्ड, व्हाट इज दिस डिजीज एंड मैरिज? यस, फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू स्टडी द डिजीज एंड मैरिज, दीज आर द टू वेरिएबल्स एंड आई हैव टू सी लाइक द मैरिज हैज नेगेटिव एसोसिएशन विद द डिजीज सो कॉल्ड कैंसर. सो दिस इज माई like perspective. So I can say that the marriage people less likely to develop a cancer. So I am like selecting two variables और उसका correlational study देख रहा हूँ. That is called the research design. Correlational. Now next is the experimental design. ये बहुत ही कॉमन है, जितने भी हम लोग करते हैं, वी ऑल आर डूइंग द एक्सपेरिमेंटल, और कई बार एक्सपेरिमेंटल के साथ हम कोरिलेशनल भी कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन आवर लैब आई एम स्टडिंग सम वेरिएबल्स जिसके अंदर लाइक डेंगी है और दूसरा इन्फेक्शन है, को इन्फेक्शन है, उसके दो पैरामीटर्स को मैं स्टडी कर रहा हूँ, दैट इज़ को रिलेशनल. बट मैक्सिमम केसेस में हम एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के अंदर कई सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा. लेट्स से एनिमल स्टडी डिज़ाइन की, एक कंट्रोल ग्रुप के एनिमल्स ले लिए जिनके अंदर 4 एनिमल्स मैंने रख दिए. द सेकेंड ग्रुप इज़ द डिजीज़ ग्रुप, उसके अंदर मैंने बैक्टीरिया या कुछ अल्सर क्रिएट कर दिए उस 4 एनिमल्स के अंदर, वो चारों अल्सर डिजीज एनिमल हैं. नाउ द थर्ड ग्रुप इज़ माय प्रोडक्ट, मैंने कोई ड्रग डिज़ाइन की और उन चारों अल्सर वाले एनिमल्स को दिया. नॉट द सेकेंड वन, द थर्ड वन, उसमें भी डिजीज़ कॉज की और अपना ड्रग का ट्रीटमेंट दिया. एंड द फोर्थ वन इज़ डिजीज़ कॉज्ड प्लस द मार्केटेड ड्रग अवेलेबल फॉर द अल्सर. सो कंपैरिजन हो गया कि जो मार्केट की ड्रग अगर 80% ठीक कर रही थी और मेरी ड्रग अगर 70% ठीक कर रही है, सो माई ड्रग इज़ वर्किंग. सो दिस इज़ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन एंड आई विल कंपेयर ऑल दीज वेरिएबल्स विद द कंट्रोल. सो दिस इज़ अ परफेक्ट एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन. मेरे पास कंट्रोल है, नेगेटिव कंट्रोल है, पॉजिटिव कंट्रोल है, एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल है. गॉट इट? नाउ द लास्ट वन इज़ द क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन. इसके अंदर क्या होता है कि ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन देखा जाता है. एंड इफ आई टेल यू लाइक एज अ नेम सजेस्ट, सच एन एक्सपेरिमेंट इज डिज़ाइन रेप्लिकेटिंग द ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन.
एक्सेप्ट दैट इट डज नॉट यूज रेंडमाइज्ड सैम्पल ग्रुप. सो इसका अगर मैं एग्जांपल दूं, लाइक स्टडिंग अ स्पेसिफिक क्लासरूम ऑफ स्टूडेंट टू डिटरमाइन अ सर्टेन लर्निंग आउटकम. सो मेरे यहाँ वेरिएबल्स फिक्स हैं कि सपोज मैं क्लास 9th के स्टूडेंट्स को देखना चाहता हूँ कि उनके लर्निंग आउटकम्स कैसे हैं. सो सम वेरिएबल्स आर फिक्स्ड. सो रैंडमाइज्ड सैंपल नहीं होते, क्वासी एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंटल बट द वेरिएबल्स आर फिक्स्ड. Now the next is the qualitative research design. As the name suggests, on the other hand, it is an exploratory in nature. जैसे कि जितने भी सोशल साइंस वाले स्टूडेंट्स होते हैं, it try to discover not guess the conclusion. It seeks to answer the questions what and how. क्या हुआ, कैसे हुआ. It is a process to include or develop a hypothesis that is further tested using some techniques. किसी टेक्निक से इसको टेस्ट किया जाएगा और जो डेटा होगा that is mostly documented words from the interview, newspaper, videos, etc. Got it? So इसके अंदर काफ़ी जो रिसर्च होती हैं that is based on some questionnaire, interview, different groups से पूछना, इस तरीके का, that is a qualitative. So this is the types of design. Now move on to the next steps in developing a research design. अब आपका टॉपिक डिसाइड हो गया, लाइक आई वांट टू स्टडी द ग्रुप ऑफ पीपल, लाइक छोटे बच्चों के अंदर मुझे स्टडी करना है कि न्यूट्रिशन की कमी क्या रहती है, या मुझे ओल्डर एज के जो एल्डरली लोग हैं, जो ओल्ड एज लोग हैं, जेरियाटिक पॉपुलेशन है, उसमें स्टडी करना है कि लाइक उनके अंदर विटामिन डी की कमी होती है. सो अब मुझे डेवलप कैसे करनी है, स्टेप्स क्या होंगी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Now first I have to classify the intended outcome. What needs to be understood. अभी मुझे समझ में आ गया कि मुझे जो जीरियाटिक पॉपुलेशन है 50-70 प्लस ईयर्स की, उनके अंदर विटामिन डी देखना है. तो मुझे पता है व्हाट नीड टू बी अंडरस्टूड, मुझे पता है ये चीज़ देखनी है. सो मेरा पहले पॉइंट क्लियर होना चाहिए. नाउ डेवलप द रिसर्च क्वेश्चन. मैं पूछूंगा कि मैं 70 एज में, लाइक आई विल टेक द मेल, आई विल टेक द फीमेल, आई विल टेक द 70 प्लस with diabetic, I'll take the 70 plus male with diabetic. मैं अपने क्वेश्चंस बनाऊंगा कि मैं किस टाइप के लोगों को लूँ. अभी मेरे पॉइंट्स क्लियर हैं, बट आई नीड टू डेवलप अ रिसर्च डिज़ाइन. जैसे ही वो रिसर्च डिज़ाइन फिक्स होगी, आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. नेक्स्ट इज टू अंडरस्टैंड व्हाट नीड टू बी मेजर्ड. ये मुझे समझना होगा डिज़ाइन बनाने से पहले मुझे मेज़र क्या करना है. फॉर एग्जाम्पल मुझे विटामिन डी मेज़र करना है, बट जेरियाटिक में ही करना है, बट जेरियाटिक में भी तो कई सारे वैराइटीज़ हैं. सो आई हैव टू एनालाइज फर्स्ट कि मुझे स्पेसिफिकली किस पे काम करना है. नाउ द सेलेक्ट द पॉपुलेशन एज पर द स्टडी. देखा, बोला ना, सेलेक्ट द पॉपुलेशन. मुझे अर्बन एरिया की पॉपुलेशन सेलेक्ट करनी है, मुझे रूरल एरिया की पॉपुलेशन सेलेक्ट करनी है. अंडरस्टूड. नाउ आइडेंटिफाई द आइडियल डेटा कलेक्शन मेथड. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैं पहले ही डिसाइड कर लूँगा, लाइक दिस इज़ द वे कि मैं गांव में जाऊँगा, जो हॉस्पिटल्स हैं, जो गवर्नमेंट CHCs हैं, हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, वहाँ से डेटा कलेक्ट करूँगा. लाइक जस्ट गिव मी द डेटा कि हाउ मैनी आर द डायबिटिक ऑफ 70 प्लस ईयर ऑफ एज, कितने लोग आपसे ट्रीटमेंट करा रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो कंस्ट्रक्ट इंटरकनेक्टेड कैरेक्टरिस्टिक्स. ये सारे फीचर्स कनेक्ट होंगे, देन ओनली आई कैन प्रोसीड. Use correct analysis tool. Once I'll collect the data, start collecting the data. I need to know कि मैंने 4 ग्रुप बनाए हैं, तो मुझे एनोवा लगाना है कि टी टेस्ट लगाना है. एनालिसिस मस्ट बी वेरी स्ट्रॉन्ग. एक टाइप के ग्रुप में जो एनालिसिस होगी, या डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स में करूँगा, एक एक पेशेंट की एनालिसिस करूँगा, या क्या करूँगा. डिसाइड हाउ द फाइंडिंग्स ऑफ द स्टडी शैल बी पब्लिश्ड. ऊपर तक जाना है, सब कुछ फाइनलाइज करना पड़ेगा. देन ओनली योर रिसर्च डिज़ाइन विल बी परफेक्ट. Now, move on to the next. Very important is the hypothesis. देखो, hypothesis समझ में आ गया होगा सबको नेम से ही कि what is hypothesis. So, as the name suggests कि सोचना है यार, कुछ दिमाग लगाना है, like this is the hypothesis, मैं ये सोच रहा हूँ. But ये scientific term है, research की term है. So, hypothesis is an educated guess. आप guess करते हो based on the probability of outcome. ये करने वाला हूँ, लाइक जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि मैं विटामिन डी देखने वाला हूँ ओल्ड एज ग्रुप के अंदर. सो मेरी हाइपोथेसिस क्या होगी. मुझे एक हाइपोथेसिस बनानी पड़ेगी कि जो डायबिटिक वाले पेशेंट्स होते हैं वो बहुत लेथार्जिक होते हैं
और उनका विटामिन डी लेवल कम होता है और उनका लाइफ स्पैन और क्वालिटी ऑफ लाइफ वेरी पुअर होती है. ये मैंने सोचा, दैट आई एम गेस. अब प्रोबेबिलिटी क्या है वो करने के बाद पता चलेगा, बट माई हाइपोथेसिस इज दैट. तो साइंटिस्ट फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस आफ्टर दे अंडरस्टैंड ऑल द करंट रिसर्च ऑन द सब्जेक्ट. तो सब कुछ समझना पड़ता है, देन ओनली यू कैन डिसाइड द हाइपोथेसिस. तो हाइपोथेसिस बाद में बनती है, पहले रिसर्च प्रॉब्लम पकड़ना होता है. So hypotheses specify the relationship between the at least two variable and are testable. For hypothesis to function properly, other researcher must be able to reproduce the result. ऐसा नहीं है कि कुछ कोई दूसरा कर ना पाए. Reproducibility is very very important. So the next is hypothesis types. So basically जब भी आप hypothesis बनाओगे, so तीन चीज़ हो सकती हैं. Maybe your hypothesis will be right and it should be wrong, and the third one is partially right. Got it? ये तीन probability आपकी hypothesis में होंगी once you will design your research. So hypothesis के type अगर मैं देखूं, that is a descriptive hypothesis that asks a question and a directional hypothesis that makes a statement. डिस्क्रिप्टिव जस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मैंने सोशल साइंस का एग्जांपल बताया, बट डायरेक्शनल के अंदर स्टेटमेंट्स होते हैं. सो दे आर टेस्टेड बाय कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन दैट विल बी एनेबल यू टू कंक्लूड इफ योर assumptions आर रॉन्ग करेक्ट. सो एन हाइपोथेसिस इज यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट टू डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल. द पर्पस ऑफ द हाइपोथेसिस टू फाइंड द आंसर टू द क्वेश्चन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल एंड ऑल दीज थिंग्स. लाइक देखो, the 6 common forms of hypothesis are, the very one is a simple hypothesis. Simple hypothesis अगर मैं बोलूँ, एक बहुत ही simple form में कोई hypothesis नहीं बनाता हूँ. Like if you stay up late, अगर रात में देर तक जगोगे, so you will feel tired next day. Simple hypothesis है. It's very simple. If you stay up late, then you will feel tired throughout the day. Simple. No complex. Now move on to the next complex. हम complex पे भी आ जाते हैं. So what is a complex? कुछ चीज़ें होनी चाहिए. For example, smoking and other drugs, cigarette और कुछ ऐसी drugs that leads to the cancer, tension और chest infection. 3-4 वेरिएबल मिला दिए, कॉम्प्लेक्स कर दिया कि स्मोकिंग और ड्रग्स कैन लीड टू द कैंसर, टेंशन और चेस्ट इन्फेक्शन. This is a complex. चीज़ें बढ़ गई. Now the third one is empirical hypothesis. Empirical के अंदर दो एलिमेंट्स होंगे that employ work. दो एलिमेंट्स होंगे जिसमें कि हम उनका उस पर इफेक्ट देखेंगे. लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई एक कंपनी है, उसके एम्प्लॉयज़ हैं, वो देखना चाह रहे हैं कि यार अगर एम्प्लॉयज़ को मैं ऐसा एनवायरनमेंट दूंगा दैट इट विल गिव यू द बेटर रिजल्ट. अगर मैं बहुत ही कम टेम्परेचर रखता हूँ, एसी पूरे टाइम ऑन रखता हूँ, सो क्या इफेक्ट आएगा इनके ऊपर? विल इट बी फ्रूटफुल? दिस इज एम्पेरिकल हाइपोथेसिस. नल हाइपोथेसिस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और बेसिकली ये आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो अपने प्रपोजल्स में. नल हाइपोथेसिस, HO, हम इसको ऐसे लिखते हैं. एग्जाम्पल इज लाइक एक प्लांट है और दूसरा प्लांट है, सेम प्लांट है, दो प्लांट्स हैं. एक प्लांट में आई हैव गिव डिस्टिल्ड वाटर, फाइन, and in another plant I give mineral water. But my null hypothesis is that there will be no difference in growth process of both these plants. कोई difference नहीं आएगा. This is the null. अगर आप null hypothesis बना रहे हो तो आप दो condition रखो, कुछ भी रखो, but आपकी hypothesis ये होगी there will be no difference. This is an example. जब आप design करोगे ना तब मज़ा आएगा. Alternate hypothesis. Alternate means like if I want to study the quality of water of a pond or a river, so मेरा alternate क्या है कि मैं यहाँ देख रहा हूँ कि इसकी water quality ख़राब है, but in the second half it may be good. तो ये मेरी hypothesis है कि हाँ definitely यहाँ तो ख़राब है but second में सही हो सकती है. So this is an alternate hypothesis. Logical hypothesis भी ऐसी ही होती है, that have specific logic, कोई sense होना चाहिए. और स्टैटिस्टिकल के अंदर यू हैव सम डेटा, ऑन द बेसिस ऑफ डेटा यू कैन ओनली से लाइक WHO इतना डेटा देता है तो ये रिजल्ट्स आते हैं.
If they will not give the data, the results can be biased. On the basis of statistical, you have to design your hypothesis. So most common forms of hypothesis are power of prediction, closest to observable thing. This is very important. It must be very simple. Simplicity must be there. Clarity होनी चाहिए, टेस्टेबिलिटी होनी चाहिए, और किसी प्रॉब्लम से रेलिवेंट होना चाहिए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. And the general functions of hypothesis is to development of research techniques separating relevant from irrelevant. देखो जब hypothesis बनने लगती है ना, तो जो ऑब्जेक्टिव, जो टर्म्स, जो मेथोडोलॉजी हमको यूज़ नहीं करनी है वो हटा देते हैं, जो रेलिवेंट होती है वही रखते हैं. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सेलेक्टिंग रिक्वायर्ड फैक्ट्स, डायरेक्शन ऑफ रिसर्च मिल जाती है. कई बार कई लोगों की, मैं बोलूँगा 60% केसेस में PhD जो स्कॉलर्स होते हैं, दे डोंट ड्राफ्ट देयर हाइपोथेसिस. उनका एक डायरेक्शन नहीं होता है. दे विल बी जस्ट वेरी हैप्पी दैट कि गाइड ने मुझे ये काम करने को बोला, आई विल स्टार्ट वर्किंग. वो टेक्निक समझने लगता है, जस्ट करता चला जाता है विदाउट गेटिंग कि मुझे कहाँ पहुँचना है. सो डायरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. प्रिवेंट ब्लाइंड रिसर्च. अगर ठीक से बना होगा तो जो आंख बंद करके रिसर्च हो रही है वो बिल्कुल नहीं होगी. एक्यूरेसी और प्रिसीजन आएगा, थ्योरीज और इन्वेस्टिगेशन के बीच में लिंक बनेगा, एजम्पशंस और ऑब्जर्वेशंस में कोरिलेशन हो पाएगा. एंड सबसे इंपॉर्टेंट, यू विल सेव टाइम, मनी एंड एनर्जी. Now the next lecture is sampling design and data collection. This is again very important. आपका research problem हो गया, research design हो गया, basic introduction पहले ही हो चुका. अब आप execute करने वाले हो, तो sampling design and data collection is very important. This will be in the next lecture. But before that, again you have to comment and rate the quality, the delivery of these lecture series, so that I'll improve myself again and again for you. और उससे पहले जो पीछे के MCQs हैं, you have to answer the MCQs and your feedback is very important. Thank you so much for watching this series and giving me so much love and respect. Thank you so much. Have a nice day. Bye-bye. Take care.